معروف ٹک ٹاکر کی ویڈیوز وائرل۔ خاتون ٹک ٹاکر کی نجی ویڈیو وائرل کر دی گئی۔ ٹک ٹاکر نے FIA سے رابطہ کر لیا۔ ویڈیوز وائرل ہونے پر ٹک ٹاکر کا رو رو کر برا حال۔ وائرل ویڈیوز کو ٹک ٹاکر نے جعلی قرار دے دیا۔ ٹک ٹاکر کا PTA سے رابطہ، وائرل ویڈیوز سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹانے کی درخواست دے دی۔ یہ وہ عام خبریں ہیں جو ہر چند دن کے بعد پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک خاتون ٹک ٹاکر، بہت بڑا نام، اور اس بہت بڑے نام کی اچانک سامنے آنے والی تصاویر، ویڈیوز، اور پھر اس پر پورے ڈیجیٹل معاشرے کے تبصرے، اسے اریاں، بے راہ روی کا شکار، فحش اور گھٹیا قرار دینے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد، اور وہی بہت بڑی تعداد انہی تمام اریاں، نازیبا، فحش اور غیر اخلاقی ویڈیوز کو چسکے لے کر دیکھنے والوں میں شامل، وہی اس پر تبصرے کر کے اس کو وائرل کرنے والوں میں شامل، اور وہی اس ویڈیو کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹ کرنے والوں میں شامل۔ پھر ایسے ہی بہت سے لوگ اخلاقیات کے لیکچر دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کی مذمت کر رہے ہیں، ہم ان میں شامل نہیں جو اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں، ہم ان میں شامل نہیں جو ایسی ویڈیوز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایسی ویڈیوز بنانے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہم ٹک ٹاک اور اس جیسے دوسرے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے والوں میں بھی شامل نہیں۔ ہم نے ہمیشہ غلط کو غلط کہا ہے۔ قصہ کچھ بھی ہو، ایسی تمام ویڈیوز وائرل ہوتی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان ویڈیوز کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ انٹرنیٹ پر موجود رہتا ہے، یہ پھیلتی رہتی ہیں، اور ہر چند مہینوں کے بعد یہ دوبارہ بھی وائرل ہوتی ہیں۔ اسی ایک ٹک ٹاکر کی وہی ویڈیوز دوبارہ کسی نئے ٹائٹل کے ساتھ وائرل ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے صارف جنہوں نے پہلی بار میں ان ویڈیوز کو نہیں دیکھ رکھا ہوتا، وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں کیا ہوا ہے آپ دیکھیے کہ پہلے ہمارے ہاں ٹک ٹاک آنے کے بعد وائرل ہوئی حریم شاہ، سندل خٹک، ان کے ساتھ کچھ ایسی اداکارائیں یا نیم اداکارائیں جو سوشل میڈیا پر وائرل تھیں، اور انٹرٹینمنٹ چینلز یا اداکاری کے میدان میں ان کا کام برائے نام تھا، مگر انہوں نے خود کو ایسے پلیٹ فارمز سے بطور اداکارہ ہی متعارف کروایا۔ کیا یہ سب کچھ کرنے والی صرف خواتین ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ان میں بہت بڑی تعداد مردوں کی بھی ہے، مگر مردوں کی وہ بہت بڑی تعداد بھی خواتین کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھنی ہوگی کہ پاکستان ہو یا دنیا بھر میں صارفین، ٹک ٹاک اور اس جیسے پلیٹ فارم کے استعمال کرنے والوں کی تعداد مردوں میں زیادہ ہے، اور خواتین بہت تھوڑی تعداد میں ان پلیٹ فارمز کو یوز کر رہی ہیں۔ مگر وائرل ہونے والوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو مرد برائے نام ہیں، جبکہ خواتین وائرل ہوتی ہیں، خواتین کا کانٹینٹ دیکھا جاتا ہے، اور خواتین کا یہی کانٹینٹ سب سے بڑی تعداد میں مرد ہی دیکھتے ہیں، وہی اس کو وائرل کرتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ کا جائزہ لیا گیا تو ایسا کانٹینٹ دیکھنے والے مردوں کی عمر اکثر 30 برس سے اوپر ہوتی ہے جو اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، اور ایک سروے کے مطابق وہ اس بات کا اعتراف بھی اکثر نہیں کرتے کہ وہ یہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں جن لوگوں کی اریاں، غیر اخلاقی، فحش یا بے لباس ویڈیوز وائرل ہوئی، ان میں حریم شاہ کا نام شامل ہے۔ حریم شاہ کے علاوہ ایک بہت بڑا نام
जिन्होंने अपना रास्ता मुकम्मल तौर पर बदल लिया था, वो था राबी पीरजादा का नाम। उनकी वीडियोस वायरल हुई, मगर राबी पीरजादा की वीडियोस वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन के सामने एक यकसर मुख्तलिफ राबी पीरजादा आई, जिन्होंने सार्फिन से मुआफ़ी मांगी, अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, और उसके बाद उन्होंने खुद को इस्लामी खत्ताती तक महदूद कर लिया या पोर्ट्रेट्स बनाए। इसके अलावा वो लोग जिनका कंटेंट या जिन पर मबनी कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उनमें गुज़श्ता कुछ अरसे में अलीज़े सहर, मनाहिल मलिक और अब इमशा रहमान, ये वो नाम है जिनका कंटेंट गुज़श्ता कुछ अरसे में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पैटर्न का जायजा लीजिए तो आपको अंदाजा होता है कि इन तमाम लोगों के वायरल कंटेंट का पैटर्न एक ही रहा। पहले ये बताया जाता है कि इनकी वीडियोस आ गई हैं, फिर ये बताया जाता है कि इनकी वीडियोस में क्या मौजूद है, उसके बाद इस कंटेंट की मुजम्मत की जाती है। याद रखिएगा कि अभी तक कंटेंट सामने नहीं आया है, लेकिन कंटेंट में क्या है उस पर तौबा की जाती है, लानत मलामत की जाती है, हंसते मुस्कुराते इमोजी बनाए जाते हैं और हंसी ठट्ठा लगाने के बाद उस वायरल कंटेंट में से सिलेक्ट क्लिप्स वायरल करना शुरू कर दिए जाते हैं और उन सिलेक्ट वायरल क्लिप्स को लोगों को दिखाया जाता है। फिर वो लोग जिनके पास ये मौजूद होते हैं वो आम सार्फिन से मुतालबा करते हैं कि उनकी वीडियो पर कमेंट किया जाए, उनकी पोस्ट पर कमेंट किया जाए, उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट कर दी है उस पर कमेंट किया जाए और कमेंट में लिखा जाए कि ये आपको चाहिए, जब आप ये मांगेंगे तो फिर आपको दे दिया जाएगा। और बाज़ औक़ात तो व्हाट्सएप नंबर का मुतालबा भी किया जाता है और उस कंटेंट को मांगने वाले चंद सादा लोग सार्फिन अपना व्हाट्सएप नंबर दे भी देते हैं। क्या ऐसे लोगों की जानिब से ये कंटेंट उन्हें व्हाट्सएप पे फराहम किया जाता है? नहीं। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि वो लोग जो कहते हैं कमेंट्स में आइए, मांगिए वीडियो, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम आपको वीडियो सेंड करेंगे, उनके पास वो वीडियो मौजूद भी नहीं होती। उन्होंने इंटरनेट पर मौजूद एक आध क्लिप या इंटरनेट पर मौजूद ऐलान कि इस टिकटॉकर की वीडियो आ गई है, उस ऐलान की बिना पर अपनी एक पोस्ट तैयार करके सोशल मीडिया पर रख दी है और ये खुद ये चाहते हैं कि ये वायरल हो, इनकी पोस्ट वायरल हो, इनकी पोस्ट को कमेंट्स मिले, लाइक्स मिले और इनकी रीच बढ़े। ये खुद अपनी रीच बढ़ा के खुद वायरल होने के सपने देखने वाले लोग होते हैं। अक्सर व बेशतर इनके पास वो मवाद मौजूद नहीं होता जिसकी मौजूदगी का ये दावा करते हैं। अब एक और चीज देखिए कि फिर ये ख्याल भी होता है कि अक्सर व बेशतर ये कंटेंट मौजूद नहीं होता और ये सिर्फ कुछ स्टिल्स हैं जिनकी मदद से दावा किया जाता है कि कंटेंट है। लेकिन हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है कि गांव की जट्टी नजर आने वाली टिकटॉकर हो या उसके अलावा एक मॉडर्न टिकटॉकर जिसने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कंटेंट बनाया है, लोगों की ब्रांड्स को एंडोर्स किया है या इवेंट्स को होस्ट किया है, उसका कंटेंट हो, या इसके साथ साथ कोई नौजवान जो अपना कंटेंट बना रहा है उसकी वायरल वीडियोस हों। ये तमाम चीजें एक बात बताती हैं कि पैटर्न एक जैसा है और फिर वीडियोस आ भी जाती हैं। ये वीडियोस सोशल मीडिया पर दावा करने वाले सारिफ की जानिब से शेयर कम ही की जाती हैं। इन वीडियोस को आगे फैलाया जाता है व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप पर ये एक फोन से दूसरे फोन, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचती चली जाती हैं। और ये तमाम लोग जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं हर बार रोते हुए, शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इनमें से कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये वीडियोस हमारी नहीं हैं, ये जाली वीडियोस हैं। मिसाल के तौर पर आपको अदाकारा मीरा का वाकया याद होगा। अदाकारा मीरा ने कहा था कि ये मेरा कंटेंट नहीं, ये मैं नहीं, मेरे साथ जालसाजी की गई है, मगर बाद में पता चला कि वो सब कुछ अदाकारा मीरा का अपना ही था। यहाँ एक बात याद रखिए कि ऐसा कंटेंट फैलाने वाले मुआशरे में एक बीमारी की सूरत में मौजूद प्लेटफॉर्म को और ज्यादा तवाना कर रहे हैं। अमेरिका में किए जाने वाले एक सर्वे ने नौजवानों की नफ्सियात के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पेश की है। इस सर्वे में कहा गया, वैसे तो नौजवान कई नशावर आदात का शिकार होते हैं, जिनमें अब एक नया नशा टिकटॉक है। टिकटॉक ऐसा नशा है जैसा कोई और नशा होता है। कुछ स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक के आदी होने और अपना बहुत सा वक्त इस पर सर्व करने की वजह से अपने इम्तिहानात के दौरान इस सोशल मीडिया ऐप को डिलीट करने का फैसला किया।
लेकिन नहीं कर पाए। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि शायद टिक टॉक पर एल्गोरिथम नौजवानों को इस लत में मुब्तला करने की वजह है। माहिरीन का कहना है कि टिक टॉक एक लत बनती जा रही है क्योंकि ये आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज करती है और आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। अमेरिका में एक नौजवान सारिफ जिनकी उम्र 22 बरस थी, उन पर इस सिलसिले में तजुर्बात किए गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना टिक टॉक डिलीट किया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यूनिवर्सिटी में अपने इम्तिहान की तैयारी करने की बजाय वो इस ऐप पर बहुत ज्यादा वक्त सर्व कर रही हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने टिक टॉक को डिलीट करके कुछ अरसे बाद दोबारा इंस्टॉल कर लिया क्योंकि ये नोटिस किया कि उस पर वो बहुत ज्यादा वक्त लगाती हैं और उसकी आदी हो गई हैं, ये एक नशा हो चुका है। उसे फिर डाउनलोड कर लेती हैं और एल्गोरिथम ऐसा रखने की कोशिश करती हैं ताकि सिर्फ फनी कंटेंट नजर आए, लेकिन हमेशा जाकर फिटनेस और फैशन के मवाद पर रुक जाती हैं। इससे महजूज होती हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि जब वो ये देख रही होती हैं तो उन्हीं लोगों की तरह बनना चाहती हैं। इम्तिहान की तैयारी छोड़ छाड़ कर टिकटॉक पर वक्त बिताती हैं। बहुत ज्यादा मजाहिया चीजें होती हैं और भी बहुत सा मवाद होता है जिसकी वजह से ऐसी चीजें खरीदने या खास तौर पर ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। वो इंसान नहीं जो कि अपनी डाइट और फिटनेस के लिए कोशिश करे, मगर जब वो सब देखती हैं तो महसूस करती हैं कि बेहतर खाने और ज्यादा वर्जिश करने की जरूरत है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि टिकटॉक ने नई नस्ल को अपने जाल में फंसा लिया है। पाकिस्तान में उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक है कि टिकटॉक पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। टिकटॉक पर पहले भी कई बार पाबंदी लगाई गई, मगर टिकटॉक हर बार अदालतों से अपने लिए रिहाई का परवाना हासिल करता है और वापस नौजवानों के हाथों में आजाद होता है और उन्हें कैद कर लेता है। क्या टिकटॉक पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? क्या टिकटॉक पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? ये मामला एक बार फिर पाकिस्तान में ऐसी वीडियोस वायरल होने के बाद ज़ेरे बहस है।